Let us start with our quick revision. As per the revision schedule, we are left with Nazism. Then we are left with population, food security. So I have planned the same. First of all, let us come to the history chapter, Nazism and rise of Hitler. As you know, it is a revision session. So we are only going to focus on the very, very important points that this chapter has. तो ये जो चैप्टर है व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट इज कि नाजिज्म एक टर्म था जिसमें हिटलर जो था ही रोज अप टू पावर एंड द वे दे यूज्ड जो उन्होंने यूज किया था उसको मतलब द वे दे created that atmosphere, those all were called as Nazism. तो इनिशियली व्हाट हैपेंड इज कि जो आपका जर्मनी था इट हैड इट वाज डिफीटेड इन द वॉर एंड ये जो वॉर का डिफीट था दैट वाज पुट ऑन द कंप्लीटली ऑन द रिपब्लिक जो बेचारे मतलब कि दे वर एक्चुअली नॉट involved. They had been elected later. But the psychological and financial जो burden था वो उस वीमर रिपब्लिक को करना पड़ा जो उस वक्त में जो था इट वाज द रूलर. नाउ वीमर रिपब्लिक के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि वीमर रिपब्लिक वाज वेरी वीक. तो दैट वाज बिकॉज उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी. The Weimar Republic did not have the political stability. They used to वो लोग जो है अपने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते थे. And those who supported the Weimar Republic, they were called as November criminals. Germany was undergoing political radicalism and economic crisis. उस वक्त में जो है आपके इकोनॉमी जो है काफी परेशान था. द वे बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ट्रेटी उनके ट्रेटी के अकॉर्डिंग जो वॉर गिल्ट था उसके अकॉर्डिंग दे हैड टू पे द पेनाल्टी. दे हैड टू उनके कुछ जो एरियाज थे they had been completely taken by France and other countries. So this is the backdrop of what we call as why Nazism जो है उसको मतलब वो क्यों establish हुआ था. एक ऐसा क्या रीजन आया था एंड दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन व्हाई मतलब कि दिस हैपेंड. तो एट दैट टाइम when Weimar Republic was very weak, when people were not in support and the war guilt had drained off Germany, America had come to the rescue. अमेरिका सपोर्ट के लिए आया और उन्होंने जो है अंडर देयर स्पेशल प्लान उन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी को हेल्प कर मतलब कि टू जर्मनी हेल्प करने के लिए बोला. बट ऑन द अदर हैंड there was one more problem and that was the Wall Street Exchange crash. The Wall Street Exchange crash refers to what we call as जो हमारा शेयर मार्केट होता है वो. जब शेयर मार्केट वहां का वॉल स्ट्रीट जो है वो मतलब कि क्रैश हुआ तो दैट लेड टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड जिसका ज्यादा जो मतलब कि इफेक्ट था दैट वाज ऑन यूरोप. इवन यूएस कुड नॉट मतलब उससे वो बच नहीं सका. देयर वर countries, there were companies which had shut down, there were banks which were shut down, and the entire globe was going through the economic depression. Therefore, America could not now further help. और ऐसा एक पीरियड आया when हिटलर जो था उसने पहले जो है he had tried to attack Berlin. He was caught. But later on, he contested the election, and at that time,
he rose to power. Basically, जो ये हिटलर था, he was a messenger from one camp to another. But due to his efforts, he was, मतलब कि he rose to the power, and he was conferred the highest post, that is what we call, हमारे यहाँ पर जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां पे चांसलर, and therefore he was given the highest post. The moment he got the post, he established dictatorship. उसने जो डेमोक्रेसी है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया. He removed democracy, उसने, and he started dictatorship. First of all, he gave himself all the power. उसने खुद को सारे पावर्स दिए, जिसके अंदर था enabling act. And according to enabling act, the powers were dispersed only to the military rulers and their followers. Next उसने जो किया वो ये था that he gave. Secondly, there was a mysterious fire. और ये जो enabling act फायर वाला जो है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. There was a mysterious fire जिसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड थे they all got burned. So now there was no media mode through which Hitler could be questioned, and with the enabling act he established what we call as dictatorship. The moment he gave dictatorship, there were some changes. और उसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज था वो था there were some secret police, and these police they were मतलब कि उनको जो है they were given the places where they could see the Jews should not live freely. Concentration camps किए गए हैं, and anyone who was against Hitler or those whom he found that they were undesirable, whether they were physically handicapped or they were Jews, or he found that they were not supporting him, they were sent to the concentration camp. They were tortured over there. यानी कि ordinary people and the other people were inhumanly treated. So this is what Nazism exactly was. But on the economic front, ये अपना आपका अलग से आएगा. On the economic front, there was complete recovery. उसने जितनी टेरिटरीज जो है जर्मनी हार गई थी, they all were taken back. In fact, he pulled himself out of the League of Nations. उस वक्त में League of Nations was the predecessor to UN. UN से पहले आपका League of Nations था. तो उनको वो जो मतलब कि उससे अपने आप को हटा लिया. He had established manufacturing units. आपके जो Volkswagen, Autobahn, ये उसने establish किया. इनफैक्ट उसका जो इकोनॉमिक मिनिस्टर था उसने उसको कुछ सजेशंस भी दिए, बट ही डिड नॉट, इनफैक्ट उसको नौकरी से भी निकाल दिया. ही वांटेड नाउ टू एस्टैब्लिश अ कंप्लीट रेशियल स्टेट. नाउ व्हाट इज रेशियल स्टेट? अब सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज, सॉरी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेशियल स्टेट. तो रेशियल स्टेट का मतलब होता जहां पर उसका मानना था that only the pure Nordic Germans, यानी कि जो जर्मन के ओरिजिनल पीपल हैं जो जर्मन को ही करते हैं, they are only supposed to live in Germany, and the rest जो उसको लगता था they were non Germans, प्योर नहीं है, they all had to be vacated, sent to concentration camp. and उसने जो है स्पेंसर एंड डार्विन की जो थियोरी है, विच इज नॉट एक्चुअली द राइट, मतलब कि वो उसको उसने मिस यूज किया, मिस इंटरप्रेट किया. एक थियोरी हमारा आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है जो फिट होता है वही सर्वाइव कर पाता है. तो उसका मानना था कि जो लोग अनडिजायरेबल है, फिजिकली चैलेंज्ड है, दे आर नॉट मतलब कि फिट, सो दे शुड बी एलिमिनेटेड. And for this killing, he would be using different
वर्ड्स, वो ये नहीं बोलते थे वी आर मर्डरिंग, वो कहते थे कि हम जो है दे आर अनडिजायरेबल, तो यूथनेशिया, उनको जो है दे आर गेटिंग, मतलब कि दे आर गोइंग टू बी, उनको यहां से रिलीज कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, एंड सच टर्म्स यूज करके दे वुड बी सेंडिंग देम टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप. Hitler himself was a very good orator, and that oration power उसका जो था, oration मतलब बोलने का जो पावर था, वो इतना था कि when he had given his election campaign speech, people had easily come. उसने कहा था कि वो इकोनॉमिक रिकवरी करेगा, he would be providing the employment, he would be getting back the dignity of Germany. He had also used the symbols of swastika and red flags, and that is why he had come into the power so easily. तो ये उसके जो थे, these were the ways. Next, अब उसने जो है रेशियल कर दिया. देयर वॉज अ स्ट्रिक्टनेस, जो नॉर्डिक जर्मन्स होते थे, दे वर द एथनिक, दे वर द ओरिजिनल, एंड द अदर्स वर सीन एज इंफीरियर. एंड ही एस्टैब्लिश सेपरेट रूल्स फॉर मेन, विमेन, यूथ, चिल्ड्रन, सबके लिए उसने अलग अलग किया. लाइक इन यूथ, उसने दे मतलब कि उनको जो है दे वर टोल्ड टू बी एग्रेसिव, they were told to be steel hearted, marna, marna, no problem. And the girls were told to be good mothers and madam ki wife. They should not marry anyone out of the Nordic German. And if they did it, they would be publicly punished. उसका मानना था कि जितना आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना जर्मनी में एसेट आएगा, एंड ही वुड बी एबल टू मेक देम वर्क, एंड हम उनका जो इकोनॉमी है वो रिवाइव होगा. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने एक मतलब कि एक वुमेन देती थी उसके अकॉर्डिंग द दे वर आल्सो रिवॉर्डेड, लाइक फॉर 4 सिल्वर क्रॉस, ब्रॉन्ज क्रॉस, देन सिल्वर क्रॉस, देन गोल्ड क्रॉस, ऐसे करके दे वर गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस. आपके ये पेपर में आता है नाजीज कल्ट ऑफ मदरहुड, नाजीज कल्ट ऑफ मदरहुड. For the men, there were some rules, like when they were 7 they have to join the school, then at the 11 they have to, मतलब उनको young folk उसको join करना था, then they have to at the age of 18 they have to serve military. ऐसे उसने जो है देवर, और किसी एक हिटलर के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना वाज मैंडेटरी. द स्कूल बुक्स ग्लोरीफाइड नाजीज, एंड जो आपके नॉन नाजीज होते थे, नॉन आपके जो जर्मन होते थे, उनको जो है क्रिटिसाइज किया जाता था. द ज्यूज वर पनिश्ड, दे वर मेड टू सिट ऑन द फ्लोर, दे वर सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप. ऐसे जो है उसने रूल्स बनाए थे. सो दिस वॉज हाउ नाजिज्म स्प्रेड इन जर्मनी. देयर वर सम मूवीज विच क्रिटिसाइज सच थिंग्स, बाद में वो आए भी थे, लेकिन दैट वॉज लेटर ऑन. नाउ ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट उसने इनेबलिंग एक्ट लिया था, मिस्टीरियस फायर डिक्री था. Then he had established dictatorship. On the social front उसने men, women सबके लिए अलग अलग रूल्स बनाए थे. On the economic front he had revived the economy. जो उसके मतलब कि रूहर जैसे आपके एरियाज थे उनको वापस ले लिया था. But he made a blunder out of his what we call as overconfidence or whatever we say. He made a blunder, and the blunder was that he tried to attack Russia. And when this happened, it changed into Second World War. And Second World War ended with America bombarding Japan, क्योंकि जापान और आपका जर्मनी साथ में था. दे हैड इटाली, जापान और इनका जर्मनी का ट्राइपैरिटेट एक्ट था, मतलब तीनों का मिला हुआ. सो व्हेन यूएस जो है इनिशियली डिड नॉट वांट टू कम इनटू द वॉर,
क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से ही आपका जो यूएस का इकोनॉमी था वो खत्म हो गया था, बट ड्यू टू दिस जापान ने उनके एक एरिया को बम्बार्ड किया था, so they came along, and that was the end of second world war. And it is said that a day before, मतलब कि एक दिन पहले, when Hitler had come to know that they are going to be defeated, it is said he had committed suicide along with his family members. तो हमें स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं हेलमॉथ के बारे में, एक इंसान के बारे में जिसके बेटे ने अपने पापा को सुसाइड करते हुए देखा था। और ये सुसाइड का जो पूरा रीजन था, दैट इज व्हाई ही कमिटेड सुसाइड, बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ दैट हिटलर्स नाजिज्म। और उनको पता था कि जब एक बार हिटलर चला जाएगा तो द जर्म जो आपके नॉन मतलब कि जिन लोगों के साथ में बुरा हुआ था, दे आर ऑल गोइंग टू टेक रिवेंज, और इसी डर से उसने जो है सुसाइड कर लिया था। ये पेपर में आपके आता है। नाउ हाउ डिड अदर पीपल कम टू नो? हाउ डिड द वर्ल्ड कम टू नो? क्योंकि ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वाज सेंसरशिप, नथिंग कुड कम आउट ऑफ जर्मनी। जर्मनी से बाहर कोई बात नहीं आती थी, तो वहां पर क्या होता किसी को नहीं पता था। दिस ये जो आपका जिनोसाइड है, व्हाट इज जिनोसाइड? क्लास 9 वन मार्कर क्वेश्चन। मास किलिंग, किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, और मास किलिंग जिनोसाइड या हॉलोकॉस्ट, या हॉलोकास्ट। हम लोगों को पता लगा था बाद में, the atrocities, the sufferings after the world war ended, after Hitler committed suicide, there were many areas जहां पर आपके बुक्स, जर्नल्स, डायरीज वगैरह थी। कुछ को तो उनके जो हिटलर के जो फॉलोअर्स थे, दे ऑल हैड बर्न्ड, उसको जो है जला दिया था, लेकिन बाकी जो बच गए थे ना, उनसे वर्ल्ड को जो है उस पीरियड में क्या क्या हुआ था, दिस केम इनटू पिक्चर। So that is the chapter Nazism and Rise of Hitler. And in this chapter, the effects of economic depression, then Nazis, cult of motherhood, then why did people criticize Weimar Republic, then what was Holocaust, ये तो वन वन मार्क है, और जीनोसाइड वन मार्कर है। देन डार्विन वाली थ्योरी जो है वो भी आपका वन मार्कर है। हाउ कैन यू से दैट हिटलर वॉज अ गुड ओरेटर, वो आपका थ्री मार्कर क्वेश्चन है। हाउ डिड हिटलर राइज टू पावर, these are, then what were the things sorry, what was the treatment that was given to the youth? So these are all the three marker question. And apart from that, you may in the first sorry in this chapter and also the Soviet, you may get even a map. हिस्ट्री से एक मैप आता है आपका 2 मार्कर, एंड 3 फ्रॉम ज्योग्राफी। सो दैट इज द चैप्टर राइज ऑफ हिटलर। नेक्स्ट जो आज हम लोग करेंगे, दैट इज आपका पॉपुलेशन। When we talk about the word population, means if you see on the screen, आप अगर स्क्रीन पर देखते हो, यू कैन सी पीपल, यानी एक कंट्री में हम पॉपुलेशन को एक एरिया में, एक रीजन में, एक स्टेट में, एक कंट्री में, एंड ओवरऑल वर्ल्ड में वी कैलकुलेट। सो पॉपुलेशन को स्टडी करना, why do we study population as a part of geography? Because geography deals with size, location, people who are living there, and when it comes to the people, that is number of population. If you we हम लोग एक economics में we have a theory, demand and supply. Demand and supply, that is, if there are population is more and resources are less, the country may face economic crisis. So population को पढ़ना, what kind of people you have, it is very important, because
वी नीड टू, हम लोगों ने पीपल एज रिसोर्स पढ़ा था. सो इफ द पीपल आर given the education, health, and skills, the population can become an asset. And that is why we study population. And since population deals with geographical area, we study it under geography. So now population mein what are the things that we can expect? The very first is the definition. Second is how do we calculate कि कहाँ क्या रहता है? तो we normally go with density of population, and this may be a one marker question under MCQ. So density means dense, घना, the number of people living per square kilometer. कितने लोग रहते हैं? And if you see in 2001, it was 324 and it has raised to 382 square person per square. यानी कि डेंसिटी एक जगह पे जो रहने वालों की तादाद है वो ज्यादा हो गई है. And if I compare it with the Western countries, I can say it is 27. Means under 1 square kilometer, you will find only 27 people, and in India it is 384. That means India is densely populated. But ये densely populated भी अगर आप देखोगे, not in all the states. If you see areas like Bihar, or if you see the plain areas, यहाँ आपकी density ज़्यादा होगी. And if you see अरुणाचल प्रदेश, जहाँ आपके बाद मतलब कि जहाँ आपका hill है, there the population density is less. The areas where there is high terrains, or matlab ki there is the weather conditions are extreme, there is sparse population. And where there are rivers or alluvial soil plain, वहां पर जो है आपका again they are more. You can see this highest in Bihar 1102. That is in state, and Arunachal Pradesh only 17%. And अगर यूनियन टेरिटरी में देखते हैं तो दिल्ली में ज्यादा एंड अंडमान में कम. एंड व्हाई, व्हाट आर द रीजंस? नीचे लिखा हुआ है, हिली एरियाज, लो रेनफॉल, लेस फर्टाइल सॉइल, एंड प्लेन्स के अंदर एवरीथिंग इज सपोर्टेड. तो दैट इज व्हाई Bihar has more population and Arunachal has less population. But overall हम density जो है एक per square kilometer का देखते हैं. Now what happens? एक अभी हमने पढ़ा कि density of population है, हमने यहाँ पढ़ा 382 था, 324 था, 382 हो गया. So how do we calculate this population growth? 3-marker question. It's a 3-marker question. पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन कितना बढ़ गया. द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इट कैन बी एब्सोल्यूट और परसेंटेज. और प्लीज एक बात याद रखना, आपको पेपर में परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है. ये लास्ट ईयर आया था एक स्कूल में, इसीलिए बता रही. एब्सोल्यूट मींस कंप्लीटली माइनस करना. पिछले साल 100 थे, इस साल 120 है, तो 120 माइनस 120, दैट्स एब्सोल्यूट नंबर, डिडक्टिंग फ्रॉम द हायर वैल्यू, राइट. एंड परसेंटेज इज इन टर्म्स ऑफ परसेंट पर एनम, यानी कि 2% का मतलब है वी हैव टू एनुअल ग्रोथ को हमें जो है, यही हमने जो 20 बोला, 20 लोग बड़े हैं, तो 20 इंटू 100 अपॉन 120 करके हम उसको, तो दैट इज आपका परसेंटेज. So we can calculate it either through absolute. Absolute does not give you the exact percent, क्योंकि हम लोग अपना जो कैलकुलेशन लेते हैं वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं. फर्स्ट वी take the absolute, then we change it into the percentage, and then we find out what is the change. So why this change is there?
अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये चेंज क्यों होता है, पॉपुलेशन ग्रो या कम क्यों होता है? तो द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज इज ड्यू टू बर्थ रेट, भाई अगर लोग पैदा हो रहे हैं तो ऐड हो रहा है, डेथ होती है तो डिडक्ट हो जाते हैं, अगर दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ आते हैं तो आपका ज्यादा हो जाता है, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं तो कम हो जाता है। बट अगर माइग्रेशन इज विद इन द कंट्री, मतलब पंजाब से इंसान हरियाणा आ गया, तो देन द पॉपुलेशन के नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, ओनली पंजाब में कम हो जाएगा, हरियाणा में ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज वो पंजाब छोड़कर हरियाणा आ गया, तो पंजाब से वो डिडक्ट हो गया और हरियाणा में वो ऐड हो गया। बट इफ द पर्सन पंजाब छोड़कर वो कनाडा चला गया तो हमारे यहां पर जो है द पॉपुलेशन विल रिड्यूस, राइट? सो दीज आर द प्रोसेसेस, और ये पेपर में हमेशा इस चैप्टर से आया है, हमेशा। बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ per thousand, we don't take it in 100 class 9, per thousand in an area in a year. Death rate, opposite, the number of death per thousand. Migration, अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाना, it can be internal and it can be international. Internal means within the country, और उसमें there is no चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज है। जैसे मैंने बोला पंजाब छोड़कर हरियाणा आ गया तो पंजाब में वो डिडक्ट हो गया, हरियाणा में ऐड हो गया, लेकिन ओवरऑल इंडिया के पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आया। बट इफ इट इज एन इंटरनेशनल देन देयर विल बी चेंज, राइट? तो ये माइग्रेशन क्यों होता है? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज माइग्रेशन टेक प्लेस? Migration takes place due to push and pull factor. 2-marker question. Push and pull factor. Push means urban areas की तरफ या बाहर की तरफ आपको ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको वहां से जाना पड़ता है। दैट इज, आपके यहाँ पर जॉब नहीं है, पोवर्टी है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, नेचुरल डिजास्टर हो गया, आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है, वॉर हो गया, ऐसे में आपको अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, पुश फैक्टर। एंड पुल इज जो आपको अपनी तरफ खींचता है, लाइक द अर्बन एरियाज पुल पीपल फ्रॉम रूरल एरिया, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, एजुकेशन, हेल्थ, डिजास्टर्स नहीं होते, लैंड आपको मिल जाता है, यू गेट सम ऑल्टरनेटिव। A 2-marker question. Next is, when we talk about population, we also talk about the age composition. क्योंकि age composition इसलिए, the number of people who work 15 to 59, those who are productive economically and biologically, they add to the economy. And whereas the children, those who need food, clothing, education, care, or the aged, they have to be dependent on other. वो भी एक फैक्टर है कि एक कंट्री में कितने लोग किस तरीके के एज के हैं। एंड इफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर, दैट इज एन एसेट टू द कंट्री। ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग काम नहीं करते हैं, वी हैव so many people who are still working, but their जो उनका इनकम होता उसको हम पूरी तरीके से ऐड नहीं करते, क्योंकि दैट इज नॉट रेगुलर, दे आर वर्किंग ऑन वॉलंटरी बेसिस, उनकी मर्जी है वो। देन व्हाट इज द जेंडर रेशियो? फीमेल पॉपुलेशन into 1000 upon male population, and if you see, दिस शोज द इंडिकेशन की फीमेल और मेल का इक्वालिटी कितना है। इवन स्टेट्स लाइक दिल्ली हैज लो सेक्स रेशियो 864 to 1000, मतलब अगर 1000 बॉयज हैं तो उसमें लड़कियां, मतलब और लड़कियां सिर्फ 864 है। दिस जेंडर रेशियो इज वेरी गुड इन केरला,
जहां 100 के लिए 110 होते हैं, पौंडीचेरी, बिकॉज वहां पर द गर्ल्स आर वेलकम्ड, दे आर नॉट किल्ड। ये भी एक फैक्टर होता है। देन उस कंट्री का लिटरेसी रेट कैसा है, उसके लिए हम लोग जो है वी गो थ्रू द डिफरेंट वे कि एजुकेशन का जो पैरामीटर्स है, लिटरेसी, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये आप 10th में भी पढ़ोगे। तो हु इज लिटरेट according to census? Any person who is 7 years and above and who is able to read, write and understand any one language with understanding is called as literate. Because अगर literate होंगे तो they would be adding, like in Kerala there is 100% literacy, in Bihar it is less. Again for male it is more and for फीमेल इट इज लेस। तो वो आपको जो है आपकी कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया में जो डिफरेंसेस हैं उसको बताता है। देन व्हाट आर द थिंग्स वेयर पीपल आर वर्किंग? द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पीपल वेयर दे आर वर्किंग। इफ दे आर वर्किंग इन प्राइमरी एग्रीकल्चर, माइनिंग, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है, लेकिन उनमें वेजेस कम होती हैं। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड टेरिशरी इज वेयर यू हैव मोर इनकम। And if you see the developed nations like USA, they have more people working in secondary and tertiary, whereas in our country it is in agriculture. हेल्थ, ये आपके सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी में भी है, सॉरी इकोनॉमिक्स में भी, यहाँ पर भी है। हाउ मच द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट, और हेल्थ हेल्दी हैं लोग, बिकॉज इफ पीपल आर हेल्दी they would contribute. If they are ill, if they are diseased, then what will happen? They would not be having enough education, they would not be contributing to the economy, और इसके लिए we need to go through certain criteria. तो health is also another factor which we need to study as part of population. अब हमारा आता है 5 marker question, क्योंकि जो ऊपर वाले है ना, this is there in your economics also, तो मे बी इट कम्स इन ओनली वन एरिया, लेकिन यहाँ पर एडोलेसेंट एंड एनपीपी जो है ये 5 मार्क्स में आता है। एज आई सेड 15 to 59 ईयर्स वाले जो लोग होते हैं, दे आर द वर्किंग पॉपुलेशन, और उसमें 10 to 19 वाले जो होते हैं, चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, दे कंप्राइज ऑफ द एडोलेसेंट। एंड इफ एडोलेसेंट्स आर nutritioned, if they are getting good health education, then aane wale time mein, in the coming time, these people can become a real asset. Like in India, the women are more anemic. WHO का जो आपका पैरामीटर है ना, उसमें इंडिया नहीं आता, लेकिन जो हमारे पैरामीटर्स हैं कि एटलीस्ट 12 होना चाहिए HB, most of the women they have 8 to 9. They are not given enough calcium, they are not given enough iron in their food. So it is also very important that we need to treat our adolescent, whether it is men or women, boy or girl, with the proper sense. और इसके लिए the national population policy 5 marker question was framed. उसके अकॉर्डिंग, एनपीपी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट फोकस्ड ऑन कंपल्सरी एजुकेशन, जो आपका सर्व शिक्षा अभियान आता है। देन infant mortality rate by providing health facilities, by bringing awareness। पहले हमारा एज ऑफ गर्ल्स की मैरिज कम थी, अब इट हैज बीन रेज टू 18। इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। देन फैमिली वेलफेयर, कितना मतलब कि बच्चे होने चाहिए, हाउ दे शुड बी ट्रीटेड, उनको कौन सा पोषण देना चाहिए, ये सब। एंड इसमें हमने जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, उनको ज्यादा इन्वॉल्व किया
because they are the future bearers. उनको educate किया about the various diseases, about how they can understand about delaying in marriages, how they can take decisions regarding their future, and thus अगर हम एक पॉपुलेशन को अच्छे से पढ़ते हैं, इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ कंट्री, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स दैट वी आर हैविंग इन अ कंट्री, एक पॉपुलेशन जो है, how it contributes and what are the things that we can add on to a good population growth. तो in the coming time ये जो बच्चे हैं, ये जो population है, it will be an asset and it can add to the development of the country. They would know how to use the resources, where to work, what is the factor of health, education, and built up a developed country. Right? So this was the second chapter for today, that is population. The last chapter that I am taking is food security in India. A very recent chapter, अभी हमने recently ही किया था, तो आप लोगों को अच्छे से learn भी होगा ही. This chapter is from economics. The first we had done from history, the second we have done from geo, and the third one is from economics. In India, when we attain independence, अभी हम लोगों ने population पढ़ा था ना, तो population में हमने एक बहुत important चीज पढ़ी थी, that women in India are anemic. And I told you, if you take the examples of 10 female, आपको 7 जो है, you will find that their HP is low. और आप देख लो अपने, मतलब कि अपने आसपास में, if a man is ill, पूरा ध्यान रखते हैं. If a female is ill, we normally don't care. मतलब she herself doesn't care. And in the rural areas, it is very difficult. तो इसका जो सबसे पहले जाता है कि हमने पढ़ा कि if nourishment is not there, तो गर्ल्स के लिए, and then even for the people, men, nourishment is very important. nourishment का पहला हमारा जो सोर्स है, वो है आपका फूड. तो when India attained its independence, at that time, the literacy level, the health, these all were very low. And the production of food inside our country was also not matching the population. So it was very important that हम food security, food को secure करें, यानी कि people living in any area should be able to get enough food to fulfill their needs. तो food security उसी को बोला जाए. तो what are the 3 components of food security? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब 2 मार्क्स में भी आता है. तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी. दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन शुड टेक प्लेस विद इन द कंट्री सो दैट इट इज अवेलेबल. देन इट शुड रीच एवरीवन. एक्सेसिबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम्स होने चाहिए लाइक पीडीएस, that it reaches everyone is able to get it. And affordability, yani ki people are having enough money to buy the sufficient nutritious food. A fourth dimension was added by Amartya Sen. Amartya Sen जो थे, उन्होंने एक फोर्थ डायमेंशन ऐड किया था इन दिस. आपके पेपर में आता हु एडेड इट. Who added it, मतलब इनका नाम आता, he was an economist. Now how could we ensure it कि सबको मिल रहा है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है? The fourth one was entitlement. ठीक है.
हाउ कैन वी डू नाउ? फूड सिक्योरिटी, जब हम कमा रहे हैं, हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी इज नॉट ओनली फॉर जनरल टाइम, इट इज for those times also when there is a disaster, when there is any casualty, when the poorest of the poor are also able to buy. उसको हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं. फूड सिक्योरिटी इज नॉट गेटिंग, हम लोगों को तो सबको मिल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द पुअरेस्ट पीपल, व्हाट अबाउट दोज who have met with some natural disasters? So it is government who has to ensure that all the sections of the country are getting food grains. तो हमारे कंट्री के अंदर हु आर द फूड इनसिक्योर, कौन है वो? अगेन अ टू मार्कर क्वेश्चन. लैंडलेस फार्मर्स, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं होती, एंड इफ दे डोंट गेट एनी जॉब, जो लोग डेली वेज में काम करते हैं उनको जो है पैसा नहीं मिलता है, तो दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर नीड्स. द आर्टिजन्स, जैसे आपके टेलर्स होते हैं, रूरल एरियाज के अंदर जो आपके मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं वो लोग, ये सब. देन इन द अर्बन एरियाज, इल पेड कैजुअल मार्केट, जैसे बारिश हुई, उनको जो है नौकरी नहीं मिलेगी, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो जाएगा, तो लेबर्स, ये दे आर ऑल रिक्शा पुलर्स. इन इंडिया देयर वाज अ फेमाइन इन 1943, द बंगाल फेमाइन, हम उसको बोलते हैं द बंगाल फेमाइन. एंड दैट बंगाल फेमाइन जो था, दैट वाज द वर्स्ट फेमाइन which affected more than 30 lakh people. And it was estimated कि अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तो such a situation may repeat. और इस बंगाल फेमाइन के अंदर आपके फिशरमैन, लैंडलेस लेबर्स, ऐसे लोग थे जिनकी डेथ हुई थी ड्यू टू मतलब कि कंटामिनेशन ऑफ वाटर, फूड पॉइजन, ये लोग चले. So it was estimated कि if the government doesn't take any step, then maybe such situation arises again. तो क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने so that we become self-sufficient? So the very first what they did was green revolution. सबसे पहला किया था, वैसे तो हमारा पहला आता फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसके अंदर उन्होंने मतलब कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इरिगेशनल फैसिलिटीज, देन मतलब कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, डैम्स एस्टैब्लिश किए थे. बट उसको और इंश्योर करने के लिए इन 1968 इंदिरा गांधी हैड इंट्रोड्यूस अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन जुलाई, जिसमें आपको जो है HYV सीड्स दिए गए थे फार्मर्स को एट सब्सिडाइज प्राइस, मतलब प्राइस से कम में. एंड दिस ब्रॉट अ चेंज इन स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, जहां पर वीट आपका जो है मल्टीफोल्ड हो गया. लेटर इट वाज आल्सो डुप्लीकेटेड ऑन राइस इन सम ऑफ द एरियाज, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं था. देन एक और तरीका निकाला, वो था बफर स्टॉक, यानी कि स्टॉक हमारे पास हमेशा रहे, एंड वेन एवर एनी स्टेट और एनी एरिया नीड्स इट, द गवर्नमेंट कैन गिव दैट टू दोज पीपल. और इसके लिए उन्होंने बफर स्टॉक के लिए उन्होंने लिया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया, एंड दे वुड बी प्रोक्यूरिंग द grains from the farmer at MSP, minimum support price. मतलब every season, जब रबी है आपका या खारिफ है, उससे पहले गवर्नमेंट प्राइस अनाउंस करती है कि हम इस प्राइस पर आपसे खरीद लेंगे. तो जो फार्मर्स होते हैं उनको इस बात की तसल्ली होती है कि जो भी वो ग्रेन उगाएंगे, दैट विल बी bought by the government, and then गवर्नमेंट उसको अपने गोदाम में रखती है, FCI के गोदाम में,
एंड वेन एवर एनी स्टेट और एनी एरिया रिक्वायर्स, वो उसको इश्यू प्राइस पर, यानी कि एक प्राइस तय करते हैं, उस पर वो उन स्टेट्स को देती। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक और सिस्टम निकाला, ये तो था उन एरियाज में जहां जरूरत है, प्लस फॉर द एंटायर कंट्री दे ऑल्सो क्रिएटेड द पीडीएस, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? दैट इज सेलिंग द ग्रेन्स थ्रू राशन शॉप्स। राशन की दुकानों के थ्रू आपके जो ग्रेन्स है उनको सेल करना। नाउ व्हाट इज रैशनिंग? दैट मीन्स पहले डेटा कलेक्ट करते हैं ऑफ ऑल द फैमिलीज इन द कंट्री, एंड देन अंडर विच कैटेगरी दे कम, बिकॉज इन इंडिया हमारा पहले तो सिंगल राशन कार्ड था, यूनिवर्सल, बट नाउ वी हैव डिफरेंट। आप ऊपर देख सकते हो आरपीडीएस, टीपीडीएस, एपीएल, बीपीएल करके, एंड देन इट इज डिसाइडेड कि व्हाट, कितना आपको ग्रेन मिलेगा। प्लस नाउ इट इज नॉट ओनली ग्रेन्स, नाउ दे ऑल्सो गिव केरोसिन ऑयल, शुगर, एक्सेट्रा। We have three kinds of ration card: Antyodaya for the poorest, then BPL for below, and APL for above. Plus for the senior citizen, it is free. They have also, इसमें जो आपके प्राइस होता है बेचने का, उसमें उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। लाइक फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इट इज बिट लेस, फॉर द सीनियर सिटीजन्स इट इज फ्री, एंड देन देर आर सर्टन प्रायोरिटी हाउस होल्ड जिनको देना है। और इस तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि राशन की दुकान के थ्रू दे आर सेलिंग द ग्रेन्स, so that the poorest of the poor, the senior citizens, and everyone is able to get. But there are some drawbacks of PDS. 3-marker question. There are some drawbacks of PDS. And what are those drawbacks? First is, जो APL category है, above poverty line, they are not much benefited. अगर हम उसी ग्रेन को मार्केट से भी खरीदते हैं तो उतना ही रहता है। सेकेंडली, समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ द ग्रेन्स आर टू डिटीरियोरेटेड, बहुत ही लो होते हैं। इन द एफसीआई गोडाउन, बफर स्टॉक आपका जो है बफर होता जा रहा है, एंड दे हैव नॉट बीन सोल्ड, सो दे गेट रॉटन, ईटन बाय द रैट्स। Sometimes the father, जो राशन शॉप्स होते हैं, they behave very arrogantly. They don't open the shops on time. They sell the good quality in the market, open market, and राशन से नहीं देते हैं. So the people face problems. So these problems have to be addressed. इसके अलावा ये तो गवर्नमेंट का था रोल in providing the food security. Then we have certain cooperative sectors जो फूड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। लाइक इन तमिलनाडु, इफ यू गो, 94% ऑफ द राशन शॉप्स आर कोऑपरेटिव, मतलब मिलकर चलाते हैं, एक इंसान नहीं, इट इज कोऑपरेटिव। इन दिल्ली, मदर डेयरी, नॉट ओनली द मिल्क बट ऑल्सो वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स एंड ऑल आर डन। गुजरात में आपका व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, एंड थ्रू दैट आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड यानी कि अमूल एस्टैब्लिश हुआ था, which sells milk and milk products. And in Maharashtra there is one very famous Academy of Development Science जिन्होंने ग्रेन बैंक सेटअप किए हैं जगह जगह पर। जिनके पास ज्यादा होता है वो वहां पर जमा करते हैं, जिनके पास नहीं होता मतलब कि वहां पर उसे दिया जाता है। So thus not only the government, even NGOs, cooperatives are working towards food self-sufficiency, and of course, India is food sufficient. In fact, we are exporting many of our food grains. Like हम उसका नाम क्या है, राइस को करते हैं। पहले जो है राइस was only in बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ऐसे एरियाज में थे, but now the good grains like आपका बासमती, it is grown in Punjab and Haryana and it is exported.
Then we are exporting pulses, we are exporting rice, sorry, wheat. So now we are food sufficient. एंड फूड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैनर, क्योंकि अगर हम फूड को ही बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग द फॉरेन एक्सचेंज फॉर बाइंग द फूड, देन डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस. So that is why we need to study food security under economics. इसमें आपके मोटे मोटे यही क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स, देन हु आर फूड इनसिक्योर, then what steps Indian government had taken to make self-sufficient, then what is the working of PDS, मतलब what are the drawbacks आपके, and role of cooperatives. In other words, if you are well versed with the NCERT back questions, this chapter will give you full marks. So that is the end of food security in India.